What a turn of events of this game. I mean, Arsenal were not looking that dominant, फिर भी जीत के चली गई and City were thrashed. Amazing game, amazing play by Arsenal. I mean, ऐसा गेम देखने मिलता नहीं है जल्दी, बट कम्युनिटी शील्ड फाइनल, दिस वॉज समथिंग अमेजिंग. आई मीन, हु वुड हैव थॉट? So welcome to YD's Offside, where we talk about sports strategies, reviews, and a lot more. Arsenal completely dominated this game. City were looking strong enough, but this game turned out to be something good for Arsenal. Start होता है game with Rodri taking shots and Alvarez trying for some shots, but starting में ही City was showing that they are strong enough for the game. एंड स्टार्टिंग से ही शॉट्स लेना वो स्टार्ट कर रहे थे, बट आर्सेनल के जो काउंटर्स बन रहे थे उसको भी कट अकॉर्डिंगली कर रहे थे. आर्सेनल ट्राइंग फॉर सम अटैक्स, फॉर सम काउंटर अटैक्स, उसमें भी जॉन स्टोन्स एंड अकांजी प्लेड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लॉकिंग दोस काउंटर अटैक्स. Arteta is getting furious and City is still playing the same game, but 24th minute पे जब Ben White is trying to carry the ball from the right wing and tries to cross it to Kai Havertz misses, but then follow back to Martinelli. Martinelli tries to score, but John Stones block it, and what an amazing block. अगर वो गोल हो जाता तो शायद आर्सेनल थोड़ा सा पोटेंशियली आगे बढ़ जाती गेम में, लेकिन आर्सेनल एट दैट मोमेंट were showing that they were something in that game, and they're not just here to play, they were here to win. Arsenal, even though having more possession than City at that moment, they were it was seen that Rice was mostly intercepting for more headers. उसके हेडर इंटरसेप्शन ज़्यादा थे कंपेरेटिवली जितने उसके पैर पे बॉल आ रहा था, एंड आई गेस उसके लिए ही उसको साइन किया गया है एट आर्सेनल. एंड हावर्ट्स वॉज टोटली डिजास्टर दिस गेम. हावर्ट्स के ऊपर जो चीज़ रिलाई की जाती, ही वॉज नॉट अप टू द मार्क. जो चीज़ उसने सेकेंड पिछले 2 गेम्स में किया है, 2 गोल्स मार रहा है, ही स्कोरिंग गुड, ही इज़ डूइंग गुड, बट जो इंपॉर्टेंट गेम है FA कम्युनिटी शील्ड, उसमें ही इज़ नॉट टर्निंग अप, एंड दिस इज समथिंग प्रॉब्लम फॉर आर्सेनल टिल नाउ. Not a very big problem. He can do well in the season because the season hasn't started yet. But if it starts, Arsenal have to make sure that Kai Havertz, the main striker of the team, उसको थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा एज स्ट्राइकिंग पोजीशन पे परफेक्टली टू बी एक्यूरेट विद द बॉल्स, एक्यूरेट विद द टचेस. जो वो टचेस ले रहा है उससे उसको प्रॉब्लम हो रही थी. मार्टिनेली एट दैट मोमेंट, जो अगर नहीं आता फॉलो अप के लिए तो शायद वो चांस क्रिएट नहीं होता, इवन दो जॉन स्टोन्स ब्लॉक्ड इट, बट स्टिल Havertz has to keep the ball in his feet. Jurrien Timber, new signing of Arsenal as a left back, completely dominated in his position. He was challenging Bernardo Silva on a 1v1. Bernardo Silva, and he was very physically confident, and he almost outplayed Bernardo Silva, because whenever Bernardo Silva was trying to dribble across him, he was almost there just to block his shot. Arsenal ने जो न्यू साइनिंग्स करी हैं, whether it be Kai Havertz, Rice or Jurrien Timber, I can say Rice would be a bit doubtful until now. Maybe the season he will prove, but Timber has been very good. Timber और अच्छा करेगा, and Timber was actually very amazing this game. I'm gonna say this, I don't know, in this video many a times, but he was amazing. Actually he was amazing at this position. Left back बहुत ही ज़्यादा important position होता है फुटबॉल में, and he was the person to stop the attacks made by Kyle Walker and Bernardo Silva. Their link up जो उनका हो रहा था during the right wing, Bernardo Silva trying to body feint and pass it to Kyle Walker to create a cross from the right back, but he was amazing at left back. He was trying to stop accordingly. He was making the best interceptions possible. एंड देन सिटी एक हाफ लाइन गोल का ट्राई करती है जिसमें रैम्सडेल बहुत आगे चला जाता है. आई डोंट नो व्हाट ही वाज डूइंग एट दैट मोमेंट, बट मे बी ही वाज अवॉइडिंग द ओनाना मूवमेंट. ओनाना का वाला गेम भी बहुत अजीब हो गया था, बट रैम्सडेल ने फिर वही गलती करी, वो आगे आ जाता है. ही इज़ लाइक, आई डोंट नो, आई फील लाइक रैम्सडेल इज़ जस्ट अ यंगर वर्जन ऑफ जॉर्डन पिकफोर्ड. द मोर फ्यूरियस ही इज़, the same way he's aggressive, he's very passionate, he's all every time he's shouting, but
ऑफ कोर्स ही इज़ अ गुड गोल कीपर, नो डाउट. फॉर आर्सेनल ही हैज़ बीन वेरी अमेजिंग, लेकिन वो चीज़ जो उसके अंदर है, जो वो खुद मिस्टेक्स करता है, वो उसको जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता है. Second half starts with Arsenal giving away the position to City very early in the game. And एक चीज़ जो अच्छी हुई थी कि यूरियन टिम्बर जो आर्सेनल का डिफेंडर है, वो परफेक्ट पोजीशन पे अपने था जहाँ पे उसको होना चाहिए था. शायद दैट इज़ वाई आर्सेनल साइंड हिम, बिकॉज दे न्यू कि उसके अंदर पोटेंशियल है. डिफेंस आर्सेनल का वॉज वेरी स्टेबल टू स्टॉप द सिटीज अटैक. सिटी का अटैक बार बार बन रहा था. दे वर ट्राइंग फ्रॉम द बैक फोर टू क्रिएट द चांसेस. दे वर गुड इनफ टू कीप द बॉल इन देयर फीट. बट एट दैट मोमेंट जब बीच में एक पार्ट गेम आ जाता है, व्हेन द गेम गेट्स क्वाइट बोरिंग, नॉट एक्चुअली बोरिंग दो, बट आई कैन से बोथ द टीम्स वर डोमिनेटिंग. दोनों टीम्स एक्चुअली में डोमिनेट कर रही थी. दोनों, कभी इसका काउंटर बन रहा है, कभी सिटी का काउंटर बन रहा है, कभी आर्सेनल काउंटर बन रहा है. दोनों धीरे धीरे गेम आगे बढ़ाने का ट्राई कर. दे वांट टू स्कोर, दे वांट टू विन द गेम, ऑफ कोर्स. देन आफ्टर कोल पामर गेट्स सब्ड ऑन इन रिप्लेसमेंट ऑफ हालैंड. कोल पामर एक बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूशन है. ही इज़ यंग and he is City's academy player. He knows the game well at what he's playing at City. आर्सेनल का प्रॉब्लम जो था वो था कि आर्सेनल डूइंग सम लेट सब्स्टिट्यूशंस. ट्रोसार्ड वगैरह जो एंड में आए, ट्रोसार्ड, फाबियो विएरा, ये सब बहुत लेट लेके आए. बट द गुड थिंग वाज कोल पामर स्कोर्ड एंड City fans at that moment were thinking कि game has won. We have won the game. City fans were very confident कि अब जीत चुके हैं हम, अब तो कोई चांस ही नहीं है आर्सेनल का कमबैक का. बट 8 मिनट्स ऐड ऑन होते हैं. देन जो काइल वॉकर और थॉमस पार्टे का जो कोलिजन होता है, कोलिजन की वजह से दोनों को हेड इंजरीज हो जाती हैं. दैट इज़ लाइक एन एडवांटेज फॉर आर्सेनल बिकॉज दे स्कोर. लियांड्रो ट्रोसार्ड, दैट बॉडी फेंट वॉज अमेजिंग. आई मीन amazing, literally amazing. Body feint करके he tries to gets it to the left wing and Jesse he scores, deflection from Akanji and the goal is scored. Even though Ortega was doing good at the goalkeeping side, Ortega ने वो नहीं बचा पाया because वो एक deflection था, वो pure mistake थी from Akanji. अगर वो नहीं होता तो maybe City would have won it. आफ्टर दिस इक्वलाइजर जब पेनल्टीज तक गेम जाता है, बिकॉज एक्स्ट्रा टाइम नहीं होता है, बट जब पेनल्टीज में गेम जाता है, देन केडीबी फर्स्ट मिसेज इट, ट्रोसार्ड स्कोर्स इट, ट्रोसार्ड स्कोरिंग इट, देन सिल्वा स्कोर्स इट, साका जिसको वेम्बली हमेशा हॉन्ट करेगा फॉर दैट यूरो फाइनल पेनल्टी, बट स्टिल ही मैनेजेस टू स्कोर. एंड देन धीरे धीरे जब गेम आगे बढ़ता है पेनल्टीज में आगे, देन रॉड्री मिसेज इट. Then against Arsenal, last to win the game for Arsenal, Fabio Vieira steps up. Fabio Vieira scores. Arsenal winning this FA Cup. Oh, sorry. And Arsenal winning this Community Shield was amazing. बहुत अच्छा गेम खेला आर्सेनल ने भी. ऐसा नहीं, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आर्सेनल वॉज वेरी पुअर या फिर उनको कुछ इम्प्रूव करना चाहिए. इम्प्रूव करने की बात आएगी तो मैं बोलूँगा कि काय हावर्ट्स के जगह पे उनको, काय हावर्ट्स को जगह पे नहीं, लेकिन जो सब्स्टिट्यूशन कर रहे थोड़ी जल्दी करें. काय हावर्ट्स को थोड़ा सा और प्रैक्टिस की ज़रूरत है, थोड़ी सी ट्रेनिंग और देनी चाहिए उसकी पोजीशन पे. उसकी टचेस क्लियर करिए, उसके टचेस को बेटर बनाइए, फर्स्ट टचेस जो है उसको, बिकॉज ही इज़ अ स्ट्राइकर. अगर स्ट्राइकर के टचेस सही नहीं होंगे देन इट वुड नॉट वर्क फॉर आर्सेनल. नाउ व्हाट वी शुड लर्न फ्रॉम दिस गेम इज़ दैट इट्स नेवर ओवर अंटिल इट्स ओवर. बिकॉज सिटी के फैंस को, सिटी खुद टीम को लग गया था कि दैट वी हैव वन इट, अब तो कोई चांस नहीं है आर्सेनल का. But still Arsenal somehow manages to score the equalizer. They try to win it and they win in for real because they are not like कि हम जीत चुके हैं, हम तो already जीतने वाले हैं. They win it and then they celebrate it. So that is Arsenal's way. Maybe Arteta का thinking ये है, Arteta का new tactics ये है कि ऐसा हमें गेम प्ले रखना है. आई कैन नॉट से कि कोई प्लेयर ऐसा अंडर परफॉर्म किया है आज के मैच में. जो किया है वो मे बी काय हावर्ट्स होगा. आई एम सेइंग हिज नेम अगेन एंड अगेन बिकॉज काय हावर्ट्स को बेटर करना पड़ेगा एट आर्सेनल. दैट इज़ व्हाई दे साइंड देम. व्हाट आई विल से फॉर सिटी इज़ दैट सिटी को कुछ ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है. दे वर ऑलरेडी डोमिनेटिंग इनफ, दे वर डूइंग गुड, बट इट वॉज आर्सेनल्स डे. आर्सेनल को जीतना चाहिए था वो चीज़, तो आर्सेनल जीती है बिकॉज आर्सेनल हैड दैट माइंड सेट टू विन. आई कैन नॉट से एनीथिंग कि सिटी के पास वो माइंडसेट नहीं है या फिर वो चीज़ नहीं है. सिटी का दिन नहीं था. सिटी वर डूइंग गुड बट स्टिल नहीं जीते. अपने थर्ड कंसेक्यूटिव लॉस के बाद अगर कुछ सीखना चाहिए पेप ग्वार्डियोला और द टीम कि
फाइनल्स को थोड़ा लाइटली ना दे, इवन दो कि ये एक छोटा सिल्वरवेयर है, लेकिन ये सिल्वरवेयर जीतना सीज़न से स्टार्ट में ही, सीज़न के पहले ही भी बड़ी बात होती है. सो आई होप कि वो लोग नेक्स्ट ईयर कुछ बड़ा करें एंड सिल्वरवेयर जीतें. So if you like the video, don't forget to subscribe to the channel, like the video and comment down your thoughts on the new season of the Premier League. Thank you.